کہ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جوڈیشل کونسل کی سفارش کالعدم قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا انہیں ریٹائرڈ تصور کیا جائے۔ فیصلے میں آرمی چیف اور وفاقی حکومت کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کو ان الزامات کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش کالعدم قرار دیتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائر جج کے تمام مراد دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عمر 62 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائر جج تصور کیا جائے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ شوکت عزیز صدیقی نے فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے، انہیں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع فراہم نہ کرتے ہوئے شفاف ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا۔ عدالت نے ان خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نوٹس جاری کیے جن پر الزامات لگائے گئے، سب نے الزامات سے انکار کیا۔ فیصلے میں آرمی چیف اور وفاقی حکومت کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کی شکایات میں الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ آرمی چیف اور وفاقی حکومت کو ان الزامات کی سنگینی کا ادراک ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس کیس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو عدلیہ کی آزادی، دوسرا بغیر کسی خوف یا لالچ کے آزادی کے ساتھ فیصلے کرنا اور عدلیہ کی خود احتسابی ہے۔ کسی جج کو شفاف ٹرائل کے بغیر ہٹانا عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ججز کا حلف انہیں بار ایسوسی ایشن یا کسی عوامی اجتماع میں تقریر کرنے سے نہیں روکتا۔ آئی ایم ایف کی نہ ختم ہونے والی فرمائشی لسٹ پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے بجلی صارفین پر 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آئی ایم ایف کا ڈو مور کا سلسلہ جاری۔ عالمی مالیاتی ادارے نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول پر 18% سیلز ٹیکس لگایا جائے، پیٹرول سمیت تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت پیٹرول پر 60 روپے لیوی کے ساتھ سیلز ٹیکس بھی لگائے، سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کر کے ٹیکس آمدنی بڑھائی جائے۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر مہنگائی کی دہائی دیتے عوام کو بجلی کے جھٹکے دینے کی تیاری۔ آئندہ مالی سال کے لیے 6 سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے درخواستیں نیپرا میں جمع کرا دی، جس کی سماعت اگلے ماہ 2 اپریل کو ہوگی۔ درخواستیں مالی سال 2024-2025 کی ریونیو ضروریات کی مد میں دائر کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے 19 مارچ کو سی پی پی اے کی جانب سے نیپرا کو بجلی کی قیمت میں 4 روپے 99 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کی درخواست جمع کرائی گئی تھی۔ نیپرا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر 28 مارچ کو سماعت کرے گا۔ آئی ایم ایف کی قسط کے حصول کے بعد موجودہ حکومت کے لیے دوسرا بڑا چیلنج۔ وزارت خزانہ نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے کرنٹ اور ترقیاتی بجٹ کے تعین کے لیے ترجیحاتی کمیٹی کے اجلاس شروع ہو گئے۔ ترجیحاتی کمیٹی کے اجلاس اسپیشل سیکرٹری وزارت خزانہ کی زیر صدارت 30 مارچ تک جاری رہیں گے۔ کمیٹی آئندہ مالی سال کے وفاقی کرنٹ اور ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ لگائے گی۔ کمیٹی رواں مالی سال کی وفاقی وزارتوں کے کرنٹ اور ترقیاتی بجٹ کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی آئندہ مالی سال کے لیے گرانٹس اور سبسڈی کی ضروریات کا بھی جائزہ لے گی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہماری سمت درست ہے اور معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کم از کم 3 سال کے لیے آئی ایم ایف پروگرام لے گا۔ ادائیگیوں سے پاکستانی کرنسی پر دباؤ کا امکان نہیں ہے۔ امید ہے روپے کی قدر مستحکم رہے گی۔ بلومبرگ سے گفتگو میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان رواں برس $300 ملین کے پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ یہ بانڈز چینی مارکیٹ میں جاری کیے جائیں گے جن سے چینی سرمایہ کار مستفید ہوں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر $250 سے $300 ملین کے بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ بعد ازاں پانڈا بانڈز کے حجم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیش بیلنس بہتر ہے، حکومت تمام قرض بروقت ادا کرے گا۔ اگلے مالی سال میں ترقی کی شرح بہتر رہے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے بیرک گولڈ کمپنی کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک بروسٹو کی سربراہی میں ملاقات کی ہے۔ بیرک گولڈ کے وفد نے وزیراعظم کو ریکیڈک منصوبے پر پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وفد سے گفتگو میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں معدنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات کے انفراسٹرکچر خصوصاً ریلوے لائن کے حوالے سے منصوبہ سازی کی گئی ہے۔ انہوں نے وفد کو بلوچستان میں معدنیات کے دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ چاغی میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کے حوالے
हवाले से हुकूमत और बैरक गोल्ड मिलकर काम कर सकते हैं। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रेकोडेक मंसूबे पर काम के लिए मकामी अफराद को तरजीह दी जा रही है। बैरक गोल्ड ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रेकोडेक के करीब में 3 स्कूल्स कायम किए हैं। अब तक 3 खवातीन समेत 100 अफराद को फ़नी तरबियत फराहम की जा चुकी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तवानाई के शोबे बिलखुसूस मादनियात, तेल और गैस की तलाश में पाकिस्तान में मौक़े मौजूद हैं। इन्होंने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने की दावत दी। अमरीकी सफ़ीर ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया है। उन्होंने मुसद्दिक मलिक को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के मुकदमे में 17 अप्रैल तक दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। ETC जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बायस ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने केस की समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील सफाई का कहना था कि अली अमीन गंडापुर FIR में नामजद हैं मगर उनका किरदार कोई नहीं, वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 50 FIR दर्ज हुई। अली अमीन गंडापुर को अदालत तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता। अदालत ने 85,000 रुपये मचलकों के एवज 17 अप्रैल तक अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI से मुलाकात न कराने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने का तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते रहे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालती हुक्म पर अमल न करने के अपने इक़दाम को जवाज़ पेश करने की कोशिश की है, जिस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जस्टिस समन रिफत ने इम्तियाज़ ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इस मुतल्लिक अदालत को मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 मार्च को दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। रुकन कौमी असम्बली शहरयार आफरीदी को तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। शहरयार आफरीदी 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तारी के बायस कोर कमेटी का हिस्सा नहीं रहे थे। कोर कमेटी मेंबरान ने एक बार फिर बानी PTI से सियासी क़यादत से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं ऑन शराजी से। जी ऑन बताइएगा। जी सर, बिल्कुल गुज़िश्ता इजलास में शहरयार आफरीदी के बयान की मंजूरी दी गई थी और आज शहरयार आफरीदी को कोर कमेटी के इजलास में पहली बार शिरकत की दावत दी गई। शहरयार आफरीदी अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। शहरयार आफरीदी को कोर कमेटी के दीगर अरकान की सिफारिश के अनुसार कमेटी में शामिल किया गया। शहरयार आफरीदी 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तारी के बायस कोर कमेटी का हिस्सा नहीं रहे थे, तो अब वो जबकि MNA भी मुंतखब हो चुके हैं तो उन्हें कोर कमेटी का दोबारा हिस्सा बना दिया गया है। शुक्रिया ऑन। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में सेनेट की 12 नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुनाते हुए जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज की, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला बरकरार रखा। लीगी रहनुमा शहबाज खोकर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के सेनेट के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद की अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। कागजात के मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर फैसले 25 मार्च तक सुनाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डोनाल्ड लू का बयान झूठा करार देते हुए असद मजीद को तलब करने का मुतालबा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा साइफर आने की तस्दीक उस वक्त के सफ़ीर ने भी की। मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंदों पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। ने जो बयान दिया था और जो साइफर आया था
उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया बाकायदा तौर पे। हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है, और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयानिया अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी, और उसके बाद उस पर डिमार्च भी किया गया, और ये कहते हैं कि जी मदाखलत थी। अब देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ अगर एक मैं गैरतमंद पाकिस्तानी होकर अगर मेरे घर में कोई मदाखलत भी करता है तो मेरे ख्याल में वो साजिश ही है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान उसे दे के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर अंदर मिन्नतें करते हैं और बाहर निकलकर डायलॉग बाजी करते हैं। केपी की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशस्तों पर हलफ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। कौंसिल वाले बाकी सूबों में फिर वो गिला ना करें कि हमारे साथ ये हो रहा है, होता तो नहीं है, लेकिन चीखते बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। हम कहते हैं कि कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन चीज़ एक हो। अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानते तो बैठे तो वज़ीर आज़म के साथ होते हो हाथ बांध के। जो साइफर का इनकी जो फिल्म है उसकी मैं समझता हूँ कि वो आखिरी किस्त जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब दोबारा ये जो है रीमिक्स फिल्म लाना चाहते हैं, साइफर करके। वहाँ जब जाते हैं तो कहते हैं मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ जब आते हैं तो कहते हैं मैं जो है अमेरिका ने निकाला। हमेशा गलत बयानी से PTI ने हमेशा गलत बयानी से काम लिया है, और गलत बयानी करके जो है लोगों को जो है इन्होंने हमेशा इतना झूठ बोल रहे हैं कि वो सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि डोनाल्ड लू का बानी PTI के साइफर से मुतालिक बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है। हुकूमत कह चुकी है साइफर का शोशा गलत है, अदालत कह चुकी है, आजम खान भी कह चुके हैं झूठे साइफर से सियासत, मुईशत और रियासत को खराब किया गया। ये कौन सी नई बात है डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट? हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं, अगर उनको किसी भी टच स्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें, इस तरह से होता ही नहीं है। नीदर दिस कुड बी डन, ये ना साइफर में ऐसे हो सकता है। व्हाट डज डोनाल्ड लू से इसके उनकी बात के बाद क्या होगा? इस पर गवर्नमेंट कह चुकी है, कोर्ट्स कह चुकी हैं, प्रोनाउंसमेंट आ चुकी है, जुडिशल ऑर्डर्स आ चुके हैं, इस पर स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, इस पर उनके एड की जो उनके अपना आजम खान उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। वो जेब से खत लहराना, जाली सफ़ेद कागज लहराना, वो साइफर है कहाँ पर, ये भी आज तक तो ये एक मुकम्मल तौर पे झूठ था। जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत, अदालत, हर चीज़ को ख़राब किया गया, इसी तरह से पाकिस्तान की सफारत भी तबाह कर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद खान भुच्चर को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे। अहमद खान भुच्चर और मोइन रियाज कुरैशी की बाज़ाब्ता तकरीरी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफ़ीर जोंग जी जोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। फ़रीक़ैन ने CPEC के दूसरे मरहले को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ करते हुए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फ़ैसला किया है। वफाकी वज़ीर ने CPEC के अगले मरहले में जाने का ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि CPEC मनसूबों के बर वक्त नफाज और तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत कोशिश करेगी। उन्होंने चीनी सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए इक़्तिसादी जोन्स को फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे शोबों का तयन करना होगा जिनमें पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा किया जा सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत के साथ मनसूबों की तकमील और कोऑर्डिनेशन के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। थरकुल को रेलवे लाइन के जरिए छोड़ तक मिलाया जाएगा। रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान डाटा शेयरिंग को बेहतर करने का फैसला भी किया गया। कराची से फारूक मुराई रिपोर्ट करेंगे। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इजलास में विंडो पावर एनर्जी के 26 मंसूबों पर बातचीत हुई। मंसूबों से 1875 मेगावाट बिजली पैदा होगी और इजलास में 1150 मेगावाट के 19 सोलर प्रोजेक्ट मंसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई।
तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इजलास में थर रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई। प्रोजेक्ट के हवाले से थर पुल को रेलवे लाइन के जरिए छोर तक मिलाया जाएगा। प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध 50% फंड मुहैया करेगी और वज़ीर आला सिंध ने आबियाने के रेट पर नजरसानी के लिए वज़ीर आबपाशी से सिफारिशात तलब कर ली। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल के हवाले से कवानीन मुरतब किए जाएं। वज़ीर सिंध को ब्रीफिंग दी गई कि भल सफाई का काम तेजी से जारी है, जो 15 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में ज़राअत की तरक्की के लिए वज़ीर आला सिंध ने महकमा ज़राअत से कारपोरेट फार्मिंग को मुतरफ कराने के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मैं चाहता हूँ ज़राई शुबे में दोस्त ममालिक की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आला सिंध को महकमा ज़राअत को मार्केट से सर्टिफाइड सेट दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। इजलास में सिंध रेवेन्यू बोर्ड और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान डेटा शेयरिंग को बेहतर करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आला सिंध उम्रा सआदत हासिल करने के बाद मंगल को वापस कराची पहुँच जाएंगे। फारूक मुराई, सच न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 265 पॉइंट्स कमी के साथ मार्केट 65,151 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 95 पैसे पर फरोख्त हुआ। 4,200 रुपये की कमी हुई। फी तोला सोना 2,28,200 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3600 रुपये सस्ता होकर 1,95,645 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $40 सस्ता हुआ, $2185 फी औंस हो गया। इस्लामाबाद के थाना सिहाला के इलाके में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। मैयत और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान ज़ाती रंजिश चल रही थी। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने का हुक्म दे दिया है। जंगलात का आलमी दिन। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया। मुहिम का इफ्तिताह प्रिंसिपल डॉक्टर अख्तर सिंधु और मारूफ समाजी वर्कर कासिम अली शाह ने पौधा लगा कर किया। शजरकारी मुहिम का मकसद तलबा में आगाही फराहम करना था। राना कामरान रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज चौधरी अख्तर संधू, कासिम अली शाह, चौधरी इफ्तिखार कंबो ने दीगर साथियों के हमरा काली लान में पौधा लगाकर किया। इस धरती का ताल्लुक जिवें साडे नाल है, साडी जुबान नाल है, उस तरह साडे दरख्तां नाल भी हैगे ने। इन्हां दरख्तां दे विच साडीआं बीमारियां दियां दुआवां ने, शफाए, छावां ने। जिस तरह कहंदे ने मावां ठंडियां छावां, तो ये दरख्तां दे नाल छावां ही हैगियां ने। खुशी का लम्हा है कि मैं उस कॉलेज में मौजूद हूँ जहाँ मेरे जवानी के कुछ अयाम गुजरे। मेरा इस कॉलेज में 96-98 बैच था और उसी ग्राउंड में खड़े होकर हम पौधा लगा रहे हैं जहाँ हम कभी खुद पौधे की हैसियत से आए थे। आज दरख्त बन के अगर हमसे कोई किसी को फैज़ मिल रहा है, कोई आसानी मिल रही है, कोई हमारे फल को एंजॉय कर रहा है, तो वो भी किसी ने पौधा लगाया था। ये पौधे जो आज हम लगा के जा रहे हैं, इनके फल भी ज़माना खाएगा इंशाल्लाह। और बड़ा मुझे यकीन है कि इस कॉलेज से जो एक अरसे से फैज़ जारी है वो हमेशा जारी और सारी रहेगा। प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनकी जो ज़ात है इस हवाले से गनीमत है कि उन्होंने चलिए देर से ही सही लेकिन इस दुरुस्त काम की जो है इब्तिदा डाली। मेरी दुआ है कि ये जो कल्चर शुरू हुआ है ट्री ट्रांसप्लांटेशन का, ये कल्चर आगे बढ़े ताकि जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस है वो हरा भरा नजर आए। शुरका ने शजरकारी मुहिम को बेहतरीन अमल करार दिया और कहा कि दरख्त आने वाली नस्लों के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा है। यूरोप ने इंडस्ट्री जोन के अंदर कितनी जो तरक्की की है, वहाँ यूरोप ने अपनी हरियाली को, अपनी पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने दरख्त का इस्तेमाल भरपूर किया। वक्त का ये तकाजा है कि इतना ओवरली पॉपुलेटेड जो कंट्री है उसमें जो ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल मतलब एक बड़ी ग्रेट नंबर ऑफ ट्रीज़ होने चाहिए। बहुत ज़्यादा तादाद में ट्रीज़ लगाने चाहिए, हमें दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि उनसे हमें साफ़ और शफाफ जो है वो आबो हवा मिलेगी। हमें चाहिए कि अपने अपने घरों में भी ये एक्टिविटी करें ताकि ये जो माहौल ख़राब हो रहा है इसको ठीक किया जा सके। इंशाल्लाह ये काम जारी और सारी रहेगा। कुदरती हुस्न से माला माल रंग बिरंगे खुशबूदार फलदार और फूलदार दरख्त और पौधे हमारा विरसा भी हैं और सेहत भी। दरख्त इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पानी।
जंगलात के आलमी दिन के मौका पर हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कम अज़ कम एक पौधा लगाकर ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे। कैमरामैन नवाज राज के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। सार्फिन की आसानी के लिए लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स रात 10 बजे तक खोले जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के औकातकार में इजाफा अच्छा फैसला है। इस बारे में मजीद जानते हैं वक़ार हुसैन से। जी वक़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत पर लाहौर में भी जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो रात 10 बजे तक खुले हैं। मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हूँ जो मुल्तान रोड पर वाक़ है। यहाँ पर हम देखने के वक्त गुजरने के साथ साथ जो सार्फिन हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और सार्फिन से हमारी ये बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये अच्छा फ़ैसला है कि रात 10 बजे तक यूटिलिटी स्टोर्स खोले जाते हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि माजी में रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर जो से थे वो शाम 6 बजे तक खोले जाते थे, जिसके बाद वो अपनी खिदमात नहीं देते थे, जिसकी वजह से सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आम मार्केट के मुकाबले में अगर देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को बड़ा रिलीफ फराहम किया जा रहा है। ये वजह है कि शहरियों की तरजीह होती है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करें, लेकिन रात 10 बजे तक यूटिलिटी स्टोर्स अपनी खिदमत नहीं दे पाता सार्फिन को, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स शहर भर में जो उनसे वाक़े हैं वो रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो बड़ी आसानी के साथ आटा, इसके अलावा चीनी, दालें और मुख्तलिफ़ किस्म की जो अशिया ख़ुरनोश है वो यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। सार्फिन का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मज़ीद उन्हें डिस्काउंट फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि उनकी ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया वक़ार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।